ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ ضلع انتظامیہ نے عوامی خدمات کی کارکردگی، شفافیت اور بھروسے کو یقینی بنانے میں قابل تعریف کام کیا ہے، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا بیان۔ وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری کا نیا سلسلہ، میدانی علاقوں میں بارش، درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ برف باری کی پیش گوئی، ضلع انتظامیہ کپواڑہ رہائشیوں کے لیے محکمہ موسمیات کی ایڈوائزری۔ ضلع انتظامیہ نے رہائشیوں سے کہا کہ وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کنٹرول روم سے رابطہ کریں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج اننت ناگ کے ڈاک بنگلہ میں ضلع افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں تمام محکمہ جات سے وابستہ افسران موجود تھے، جبکہ اس دوران ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وفود نے ایل جی کو اپنے علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ اس دوران ایل جی نے کہا کہ ضلع انتظامیہ کا منفرد اقدام ہے کہ مرکزی اسکیم میں بھی کسان زراعت اور اس سے منسلک شعبے کی ترقی میں نوجوانوں کے زیادہ سے زیادہ شرکت کا باعث بنے گا۔ ایل جی نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ سردیوں کے ایام کے لیے اچھی طرح سے تیار رہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ بجلی اور سڑک کا بنیادی ڈھانچہ اچھی طرح سے برقرار رہے اور ہر وقت ٹریفک کے لیے موزوں بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی ضروری اشیاء دیہی علاقوں کے لیے ایک منصوبے کے تحت ہنگامی بنیاد پر سہولیات کو فراہم رکھے۔ 290 کروڑ کی پروجیکٹ اناگریشن اور سنگ بنیاد رکھی گئی۔ جی سر، الطاف لوگوں سے پردھان منتری آواس یوجنا میں ایسے انیک لوگ جو لینڈ لیس تھے انہیں بھی کر کے ان کے گھر بنانے کا راستہ نئے ڈھنگ سے پروسیس کیا۔ ونٹر پریپیئرنیس کی بھی سمیکشا کی گئی اور یہ بتاتے ہوئے پرسنتا ہے کہ ہم نے بہت بہتر کام کیا۔ ضلع انتظامیہ کپواڑہ نے کیرن، کرنالی، میچیائی، دودن مل، جموں گنڈ، نوگام، لمکڈی کے رہائشیوں اور مختلف نیلوں اور ندیوں کے کنارے رہنے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان میں سے جانے سے گریز کریں۔ موسم کی بہتری تک علاقہ ضلع انتظامیہ کپواڑہ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ موسمیات محکمے نے مشورہ دیا ہے کہ ان ندی نالوں کے قریب نہ جائیں جب تک کہ موسم بہتر نہیں ہو جاتا۔ ضلع انتظامیہ کپواڑہ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے پیش نظر اونچائی پر درمیانے درجے کی برف باری متوقع ہے، جبکہ اکتوبر سن 2023 کی 16-17 کے دوران جموں کشمیر کے میدانی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے ضلع کے لوگ بالعموم اور کیرن، کرنالی، میچیائی، دودن مل، جموں گنڈ، نوگام، لمکڈی جیسے علاقوں میں رہنے والے اور مختلف نیلوں، دریاؤں کے کنارے پر رہنے والے جو کہ پھسلنے کا خطرہ رکھتے ہیں اور سیلاب کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ موسم کی بہتری تک ان علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ ضلع انتظامیہ نے مکینوں سے کہا ہے کہ وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کنٹرول روم، ڈی سی آفس کپواڑہ، پولیس کنٹرول روم کپواڑہ، پولیس کنٹرول روم ہندواڑہ سے ان نمبرات پر رابطہ کریں۔ نمبرات ہیں 253522 941 926 0195 7780937892۔ یہاں فون کر کے کسی بھی ناگہانی صورتحال میں مدد طلب کی جا سکتی ہے۔
محکمہ موسمیات کے ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ کشمیر کے کئی حصوں میں پیر کو ہونے والی تازہ بارشیں اگلے 14 سے 18 گھنٹوں تک وقفے سے وادی میں آتی رہیں گی، تاہم اس نے کہا کہ کسانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ بدھ کے بعد موسم صاف ہونے کی توقع۔ پہلے سے تھی 14 سے ہی موسم نے کروٹ لیا اور وقفے سے کچھ ایک جگہوں پہ بارشیں، پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری، چند ایک جگہوں پہ تھنڈر لائٹنگ کے ساتھ ساتھ ہیل سٹارم بھی ہوا ہے۔ تو آج ارلی مارننگ سے ہی موسم جو ہے پورا کروٹ لیا ہوا ہے اور ہلکی بارشیں خاص کر میدانی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری اور کچھ ایک جگہوں پہ تھنڈر لائٹنگ کے ساتھ ساتھ ہلکی بارشیں خاص کر جموں ڈویژن کے اندر چل رہے۔ تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ کنٹینیو رہے گا، انٹرمیٹنٹلی بارشوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری، اور کل آفٹرنون تک موسم جو ہے عموماً کلاؤڈی کے ساتھ ساتھ ویدر ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملے گا، اور اس کے بعد پورا جو امپرومنٹ ہے وہ 18 سے ہوگا۔ 18 سے لے کے 24 اکتوبر تک موسم عموماً ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں، اور بیچ میں اوکیجنلی کلاؤڈی تھوڑا سا ہو سکتا ہے۔ ادر دین دس کوئی میجر اسپیل نہیں ہے 18 کے بعد لگ بھگ 24 اکتوبر تک۔ پیر کی گلی، اس کے بعد سنتھن پاس، رازدان پاس، ہائر ریچ آف بانڈی پورہ خاص کر گریز تلیل ایریا، سونامرگ جو زوجلا ایکسس ہے، بومری، مینامرگ، خطہ لداخ کے بھی چند ایک جگہوں پہ ہلکی برف باری ہوئی۔ تو آج کچھ ایک اور پہاڑی علاقوں میں گلمرگ میں بھی برف باری ہوئی، تو کچھ ایک جگہوں پہ آج شام کے ٹائم پھر سے برف باری ہو سکتی ہے، ابھی دن میں بھی اور شام کے ٹائم بھی۔ باقی کوئی میجر اسپیل نہیں ہے، یہاں میدانی علاقوں میں بھی درمیانہ درجے کی بارشیں ہو سکتی ہیں اوور آل تھرو آؤٹ جموں کشمیر میں۔ جی پچھلے 3-4 سال سے مطلب ارلی سنو فال تو ہو رہا ہے، لیکن جو لاسٹ ایئر ہوا تھا خاص کر 23، 24 اور 25 اکتوبر کے آس پاس۔ وادی کشمیر میں بالائی علاقوں میں پیر کی صبح برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہوا، جبکہ میدانی علاقوں میں بارش ہوئی جس سے زیادہ درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ وادی کے اونچے علاقوں بشمول رازدان پاس، زوجیلا پاس، سنتھن ٹاپ اور کشتواڑ میں برف باری ہوئی ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید بارش ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات بھر مسلسل بارش اور رازدان، زوجیلا اور سنتھن ٹاپس اور آس پاس کے علاقوں میں برف باری نے حکام کو کئی سڑکیں بند کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دریں اثنا وادی کشمیر کے دیگر حصوں میں بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے چند دنوں کے دوران جموں کشمیر کے بلند و بالا علاقوں اور بکھرے ہوئے مقامات پر وقفے سے بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کل سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو ابھی بھی جاری ہے۔ جہاں وادی کے میدانی علاقوں میں تیز رفتار سے بارشیں ہوئیں، وہیں ضلع کے بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہونے کی اطلاع بھی موصول ہوئی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملی، جبکہ سردی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی تھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی بھر میں 17 تاریخ تک بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کے امکانات ہیں۔ لگاتار بارش کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی متاثر ہوئی ہے، وہیں بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بجلی بار بار گل ہو جا رہی ہے۔ دیگر اضلاع کے ساتھ ضلع پلوامہ میں بھی کل سے ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، وہیں عام لوگوں کی زندگی بھی متاثر ہوئی ہے۔ وہیں اگر ہم ضلع پلوامہ کے بالائی علاقوں کی بات کریں تو اطلاعات کے مطابق بالائی علاقوں میں جہاں برف باری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ وادی کے ہندواڑہ کے رہائشی تیزی سے اپنے آپ کو تاریکی میں ڈوبتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ غیر طے شدہ بجلی کی کٹوتی علاقے کے بجلی صارفین کو پریشان کر رہی ہے۔ ہندواڑہ ٹون میں بھی بجلی کا بحران خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بجلی نظام میں خلل پڑ رہا ہے، جو گھریلو تجارتی اداروں اور ضروری خدمات کو متاثر کرتا ہے۔ مقامی لوگوں اور
फेडरेशन हंदवाड़ा के सदर सूफी एजाज ने कहा कि मौसम सरमा शुरू होने से पहले ही हंदवाड़ा में बिजली की कटौती इस कदर बढ़ गई है कि दिन में से 5 से 9 घंटे तक बिजली गायब हो जाती है, जिससे रिहायशियों के लिए अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियां और कारोबार को आसानी से चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगरचे महकमे बिजली ने टाउन में स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए और लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने के बाद से बिजली का बहरान और बिला वजह कटौती शेड्यूल से उन्हें निजात मिल जाएगी, लेकिन शर्म और बदकिस्मती की बात है कि स्मार्ट मीटर्स के नस्ब करने के बावजूद बिजली कटौती इस कदर बढ़ गई है कि बिजली सारिफीन परेशान हो चुके हैं। सूफी ने कहा कि अगर इस महीने बिजली का शेड्यूल यही रहा तो इस माह की बिजली फ़ीस अदा नहीं करेंगे, क्योंकि बिजली फ़ीस भी अदा की जा चुकी है और ये बहुत बढ़ा दी गई है। गाँव भी है, सब लोग बिजली के एतबार से परेशान हैं। हमसे कई बार वादा किए गए, माई टाउन माई प्राइड में भी हमको यहाँ पे वादा किया गया कि हम इस हंदवाड़ा रेसिडेंस स्टेशन को अपग्रेड करेंगे, इसमें 10 kV का वो लगाना था। उस वक्त एजाज साहब चीफ इंजीनियर थे, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने फिर 6.5 kV का दे दिया था उससे, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जो आरमपुरा का रेसिडेंस स्टेशन है इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो उसको भी उन्होंने शायद अपग्रेड किया है। लेकिन हमें शेड्यूल में अगर इन ट्रांसफार्मर को नस्ब करने से हमें 2-2 घंटे फालतू पावर मिलना चाहिए, लेकिन मुझे आज शर्म आ रही है कि हमें जो शेड्यूल था 12 घंटे का, 12 घंटा बंद रहता है, 12 घंटा पावर आता है, उसमें भी हमको 2-4 घंटों का कम सेटलमेंट को देखने को मिल रहा है। अभी मौसमी सरमा का मतलब मेरे ख्याल से अभी शुरुआत भी नहीं हुई, तो बिजली पहले से ही गायब होगी अक्टूबर में ही। तो ये तो हाल अक्टूबर का है, तो दिसंबर और जनवरी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गवर्नर साहब पर हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी। हाल में कुपवाड़ा का भी दौरा किया, काफ़ी अच्छा दौरा रहा उनका। हम भी उनसे मिले, हमने भी उनसे अपनी दाद फरियाद वहाँ पे उनके सामने रखी कि बिजली के एतबार से हम बहुत ज़्यादा कस्बा हंदवाड़ा परेशान है। तो रही बात ताजरों की, तो उन्होंने गवर्नर साहब ने हमको ये बाज़ाब्ता उन्होंने हमसे अच्छी तरीके से बात की, हमारे मसले मसाइल को उन्होंने सुना। उन्होंने भी हमसे कहा कि बिजली के निज़ाम में हम इंशाअल्लाह रहमान काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें अब फ़र्क दिखेगी, क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट वादा कर रही है कि हमको स्मार्ट मीटर नस्ब करने हैं, तो मुझे लग रहा है कि पूरे हंदवाड़ा में अब 80% स्मार्ट मीटरों का जाल बिछाया गया। तो रोज़ दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटरों का यहाँ पे जाल बिछाया गया है। लेकिन अगर स्मार्ट मीटरों से हमें लग रहा था कि कुछ फ़र्क आएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा ही प्रॉब्लम। यतीम फाउंडेशन ज़िला जम्मू कश्मीर यूनिट किश्तवाड़ की जानिब से किश्तवाड़ अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। अमनदीप अस्पताल अमृतसर के माहिर डॉक्टरों की टीम ने कैंप में शमूलियत करके मुस्तहिक अफराद को मुफ्त अद्वियात के साथ साथ कई मरीज़ों की आँखों का इलाज व मुआलजा भी किया। फ्री मेडिकल कैंप में ज़िला इंतज़ामिया व अस्पताल इंतज़ामिया के अफसरान ने हिस्सा लेकर कैंप की शुरुआत की। कई माहिर डॉक्टरों के अलग अलग बेंच कायम किए गए थे और दूर दराज इलाकों से मुस्तहिक अफराद जो जम्मू व दीगर अस्पतालों में इलाज व मुआलजे के लिए जा नहीं सकते हैं, उनका इलाज डॉक्टरों की जानिब से मरीज़ों को किया गया और कई मरीज़ों को मुख्तलिफ बीमारियों को लेकर ऑपरेशन भी किए गए। इस कैंप में कम से कम 1600 मरीज़ों का चेकअप किया गया और फ्री अद्वियात भी तकसीम की गई। अमनदीप अस्पताल के माहिर डॉक्टरों ने कहा कि फ़ाउंडेशन जब भी जम्मू कश्मीर की जानिब से कैंप लगाता है तो हमें कैंप के ज़रिए मौका मिलता है कि हम गरीब व मुस्तहिक अफराद का इलाज व मुआलजा कर सकें और ये हमारी इस तरह से खिदमत जारी रहती है। यहाँ पर कैंप लगाने आए हैं जिनमें कि हड्डियों का, न्यूरो का, स्पाइन का, ENT का और जो प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर्स अमृतसर से चल के यहाँ आए हैं और यहाँ हम आए हुए सारे पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं आज। तो हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि इस जगह पर जहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं, तो डॉक्टर साहब का ये हमारे डॉक्टर अवतार सिंह जो ऑनर हैं हॉस्पिटल के, उनका ये ख्वाब है कि मैं जहाँ जहाँ अपनी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ वहाँ मैं ज़रूर करूँ और लोगों की जितनी हेल्प हो सके मैं करूँ। तो यहाँ आज हम फ्री मेडिकल चेकअप कैंप जो लगाया है उसमें साथ में हम दवाइयाँ जो हैं पेशेंट्स के लिए फ्री बांट रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके जन्मजात गुल और तालु जो है वो होल होता है उसमें, और उन बच्चों का हम फ्री में सारी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं। उनकी सर्जरी, उनका रहना, आने जाने का सारा फ्री में प्रोवाइड करते हैं।
दूसरा मैं डॉक्टर अवतार सिंह एंड डॉक्टर अमनदीप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा अपने यहाँ सिर पे अपने कंधों पे उठाया कि उन्होंने ना सिर्फ यहाँ से पहले हमने भद्रवा में भी किया, वहाँ में भी करीब 2000 के करीब पेशेंट्स आए थे, यहाँ पे भी करीब 1800-2000 आए हैं पेशेंट, रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, अभी भी आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। हमने यहाँ आयुष्मान भवा के लेवल पे तहत एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमने बाहर से डॉक्टर्स मंगाए अमनदीप हॉस्पिटल के, जो स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर हैं, ENT है, ऑर्थो है, न्यूरो सर्जन है और सर्जन एंड दैट इज स्किन स्पेशलिस्ट है, जो यहाँ पे आए हैं। और इस दूर दराज खासतौर एरिया में डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड के बहुत से लोगों को जो बेसिक कम्युनिटी। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर के इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर की क़यादत में एक हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। मेले में लोगों को तिब्बी मशवरे के साथ साथ उन्हें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस दौरान इस कैंप में सोपोर और उसके गिरदोनवाह इलाकों से वाबस्ता कई लोगों ने शिरकत की और इस तिब्बी कैंप का फ़ायदा उठाया। कैंप चल रहा है हमारे एसजे सोपोर पे अंडर बैनर आयुष्मान भारत। इसमें हमें लोगों को इस बारे में जानकारी देनी है। एक तो हमारा जो गोल्डन कार्ड्स हमारे यहाँ पे इश्यूज़ हो रहे हैं, उसके लिए सैचुरेशन हमें होनी है, चाहे वो और हमारे जितनी भी NCD स्क्रीनिंग जहाँ यहाँ पे हो रही है, ये हमें सैचुरेशन करनी है। अब 31 दिसंबर तक ये सारी हमें सैचुरेशन करनी है। और जितनी भी स्कीम्स हमारे हैं इस वक्त चल रही हैं हेल्थ के हवाले से, लोगों को इस बात की जानकारी देनी है। तक जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, अभी तक हमने 600 पेशेंट्स अभी तक देखे हैं हमने। इसमें जितने भी हमारे माहिरीन डॉक्टर हैं, उसमें पीडियाट्रिशियंस हैं, हमारे फिजिशियंस हैं, हमारे ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, हमारे ऑर्थोपेडिक्स हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ENT से भी है। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के हल्का इंतखाब कुकरनाग में कायम दांदीपुरा पार्क को सन 2011 में तामीर किया गया था। मस्कूरा पार्क पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। हालांकि पार्क की जीनत बढ़ाने के लिए इसके अंदर मुख्तलिफ अक़साम की लाइट्स नस्ब करने के साथ साथ फव्वारे भी बनाए गए थे, जबकि पार्क की देखरेख का सारा ज़िम्मा कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया था। ताहम कुछ अरसा गुजरने के बाद अब ये पार्क खस्ता हाली का शिकार हो गया है। आप देखिए तफसीली रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। सयाहों का कहना है कि पार्क की दाखिला फ़ीस 20 रुपए है, ताहम पार्क के अंदर आने के बाद 20 पैसे भी वसूल नहीं होते, क्योंकि यहाँ सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्क में मौजूद लंबी लंबी घास होने के बाइस बैठने के लिए कहीं कोई माकूल जगह भी दस्तयाब नहीं है, जिससे उन्होंने कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी जताई है। इससे न सिर्फ सियाहती मकाम पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, बल्कि महकमे सियाहत पर भी कई सवालात खड़े हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि पार्क के अंदर गंदगी पड़ी है, जिसको देखते हुए सयाह यहाँ रुकना पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि ऐसे मकामात पर जाने के बाद इंसान को सुकून मिलता है, लेकिन डांडीपुरा पार्क में आने के बाद यहाँ सुकून से नहीं बैठा जा सकता। उन्होंने कहा कि मस्कूरा पार्क हाथी के दांतों के मुतरादिफ है, यानी दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। जो ये वातावरण है, यहाँ पे टिकट लिया है 20 रुपए, बाकी कुछ फैसिलिटी नहीं है इधर। घास वास कुछ है नहीं, थम्बे वम्बे कलर हुए नहीं है, पानी है गंदा बह रहा है पानी। तो घास कितनी लंबी है यहाँ? घास जैसा लग रहा है जंगल में आ गए। तो जो लाइटें वगैरह जो है यहाँ लाइटें वगैरह लगा हुआ है, बाकी कुछ है नहीं चालू, सब खाली दिखाने के लिए खराब है, कुछ चालू है नहीं। जो फव्वारे वगैरह लगे वो सब बंद है, खाली दिखाने के लिए। क्या बंद है? सब फुवारे सब बंद है इधर, दिखाने के लिए खाली। ऐसा देख के लगता नहीं है कि दूसरा कोई बंदा आएगा इधर। कुछ चीज मेंटेन नहीं है इधर, बस खाली टिकट ले रहे हैं, उनका काम चला रहे बस। तो क्या कुछ करने की जरूरत है? इधर साफ सफाई करने की जरूरत है। बंदा आए ऐसा बैठने के लायक कुछ रखे इधर, क्या आके बैठे 2 घड़ी। अब कुछ है नहीं इधर, तो क्या बैठेगा बंदा आके। जब पता चला यहाँ पर के 20 रुपए टिकट है, लेकिन बैठने की कुछ सुविधा इधर है नहीं, बस खाली बाहर का सीन है, अच्छा लगता है थोड़ा फोटो वगैरह लेने के लिए, बाकी आदमी यहाँ सुकून से बैठ नहीं सकता है। कुछ ये देखो टूटा भी हुआ है, इधर ये बंद है और इधर से है ना गंदगी पड़ी है सारी।
फव्वारे जो लगे हुए हैं वो भी बंद है। दिखाने के लिए तो क्या है सर, बस हम तो ये ऊपर का नज़ारा देख रहे हैं, दूसरा तो कुछ है नहीं। और भाई बस अब हम रिटर्न बाहर ही निकल रहे हैं, इधर ऐसा कुछ है नहीं सर। जी सर, यहाँ पर थोड़ी अगर यहाँ के ये जो बाग वगैरह है इसको थोड़ा सुधारने की जरूरत है जी। और यहाँ पर जो सैलानी आते हैं वो अगर ये थोड़ा और ठीक होएगा तो सैलानी और ज़्यादा आएंगे। मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को मज़कूरा पार्क को तामीर और उसे सियाहती नक्शे पर लाने के फ़ैसले का खैर मकदम किया था, क्योंकि इलाके के लोगों को इस पार्क से रोज़गार भी फराहम हो रहा था। ताहम डांडीपुरा पार्क को कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की अदम दिलचस्पी के बायस अब खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। लोगों का कहना है कि जब भी कोई मकामी या गैर मुल्की सयाह डांडीपुरा पार्क में आते हैं तो पार्क में देखने लायक एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे सयाह लुत्फ़अंदोज़ हो सके, जिसके सबब सयाह मज़कूरा पार्क में रुकना पसंद नहीं करते, जिससे सियाहती मकाम पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मकामी लोगों ने कहा है कि महकमे को जहां अपने मफादात नज़र आते हैं वो वहीं अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हैं। उन्होंने कहा कि मज़कूरा पार्क से महकमे को अब तक करोड़ों रुपए हासिल हुए हैं, ताहम जब भी मज़कूरा पार्क को तज़ीन व आराइश की बात आती है तो कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी अदम तवज्जुही का मुजाहरा करती है, जिससे सयाहों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मामले की नोयत को देखते हुए मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे दीन इमरान ने यह मसला कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रोमन अहमद शेख की नोटिस में लाना चाहा, ताहम मज़कूरा ऑफिसर अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। हालांकि नुमाइंदे ने कई बार मज़कूरा ऑफिसर को फ़ोन पर कॉल किया, ताहम सीईओ ने फ़ोन उठाने की जहमत गवारा नहीं की। सयाहत को फ़रोग देने के हवाले से महकमे सयाहत की जानिब से और ख़ास तौर से अगर हम हुकूमती इदारों की बात करेंगे, हर रोज़ दावे हो रहे हैं कि हम सयाहत को फ़रोग दे रहे हैं, लेकिन वही अगर जब कोई फ़र्द जो है ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेता है तो सरकार के वो दावे जो है सराप ही नज़र आते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल जो है हल्के इंतखाब कुकरनाग के दंडीपुरा इलाके में देखने को मिली। आपको बता दें कि इस पार्क को जो है गुज़िश्ता कई साल कबल जो है बनाया गया था सयाहों के लिए, लेकिन यहाँ सयाह जो है कलील तादाद में ही आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जिन्होंने इस पार्क को जो है अपने हाथ में लिया था, हालांकि इस पे कई साल पहले जो है फव्वारे भी लगाए गए थे, लेकिन वो ताहाल बैठे हुए हैं, वो ख़राब हो चुके हैं। जो भी सयाह यहाँ पे आ जाते हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि इस पार्क में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। दीन इमरान, मुनसिफ टीवी, कुकरनाग, अनंतनाग।